I feel honored to welcome you all. I'm sorry. I feel honored to welcome you all at the closing ceremony of Diploma Program in Hospital Infection Prevention and Control. Infections acquired during healthcare delivery, more appropriately called hospital-acquired infections, HAIs, are a significant public healthcare problems around the world. It is estimated that only in the developed countries, 5 to 10% of the patients who are admitted in the acute care areas develop hospital-acquired infections, whereas in underdeveloped countries or developing countries, the risk of infection goes 2 to 20 times higher, and almost 25% of the patients are infected with these infections. A study conducted in October last year in Pakistan, almost 13%, 13% पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो HAIs डेवलप करते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस डेवलप करते हैं, जो कि एक बर्डन है, एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है इन द कंट्री जब इतने सारे इन्फेक्शंस पेशेंट्स अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और ऊपर से वो हॉस्पिटल में ये इन्फेक्शंस कैच करते हैं जस्ट बिकॉज। और WHO की जो सिंपल गाइडलाइंस है कि अगर आप बहुत अच्छे से हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉशिंग विल प्रिवेंट मेनी इन्फेक्शंस क्रॉस स्प्रेडिंग, और आप जो स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स की अपने फायदे के लिए भी हैं, दूसरे पेशेंट्स के लिए भी और अपने खानदान वालों के लिए भी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से घर जब जाते हैं तो ये जरासीम लेके ना जाए. So in these common what are these infections that the patients get from the hospital is mostly they are the bloodstream infections, pneumonia, ear, eye, throat, skin, soft tissue infections, and of course the surgical site infections as well. So and these all are fortunately preventable, which we can prevent very easily. WHO 2018 paper states that enhancing infection prevention and control programs in these countries is essential to promote quality and safety of healthcare services through certified healthcare professionals, which will help reduce and control the high level of hospital-acquired infections. The Indus Hospital and Health Network's 1-year diploma in hospital infection and infection prevention and control is a very comprehensive program which is offered online, and it covers 32 weeks of theory and 16 weeks of hands-on practice, which will cover many objectives that this diploma program has. It started in 2017, and so far the participants who have successfully certified are 217. Total 4 batches already completed, and this year the current one is running the 5th batch. And it is a very good program and a milestone achieved, which Indus has achieved so many milestones, and this is one of the milestones that we have achieved. I extend my heartiest congratulations to all the participants who have been certified this year, and my warmest wishes to the participants in the current batch. I congratulate Ms. Arifa and her team for doing this marvelous job, and it is indeed a pride for the Indus Hospital. On behalf of the infection control team, again I welcome you all on this program and making this event successful. I congratulate Ms. Arifa as well. Thank you all and Jazakallah. Thank you very much, Ms. Rashida, और आपकी दुआओं का हमें इसकी ज़रूरत है, आपकी ताउन की हमें ज़रूरत है. अब हमारे पास जो अपकमिंग है इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि हमने अब तक क्या किया और हमें इन्फेक्शन कंट्रोल की ज़रूरत क्यों थी और हम अब तक क्या कर चुके हैं.
Right. تو ہماری جرنی آف ڈپلوما ان ہاسپٹل انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول، اور ہمارا جو ڈریم ہے وہ ہے انفیکشن فری پاکستان. تو انشاءاللہ یہ ہمارے یہ خواب ضرور پورے ہوں گے. ہم نے اس ڈپلوما سٹارٹ کیوں کیا، ہمارے پیچھے اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو ہمارا اس لیے تھا کہ ہیلتھ کیئر ایسوسیٹڈ انفیکشن جو ہے وہ ہمارے لو انکم کنٹریز کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہائی انکم کنٹریز کے لیے بھی. اور ہائی انکم کنٹریز اس کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ابھی اس پروسیس میں ہیں اور ہم لوگوں کو اس پہ بہت سارا کام کرنا ہے. تو سیریس تھریٹ ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی، پیشنٹس کو بھی، اور کمیونٹی کو بھی. اور بہت سارے کامن پیتھوجن ہیں جو ہیلتھ کیئر ورکرز کے ہاتھوں سے یا اکوپمنٹ سے یا سپلائی سے یا انہائیجینک پریکٹسز سے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں جاتے ہیں. اور تقریباً 10% آف ہاسپٹلائز پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں، اور 25% انڈر ڈیولپ کنٹریز جو کہ ہمارے جیسے ملک ہیں وہاں پہ HAIs پیشنٹس کے اندر ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا ایک ہیوج برڈن ہے ہمارے ہاسپٹلس کے اوپر. تو ہم لوگ بہت تیزی سے چیزوں کو فیس کر رہے ہیں کہ ریزسٹنس آرگینزم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اینٹی بایوٹک کا ہمارے اوپر برڈن بڑھ رہا ہے، نئی اینٹی بایوٹکس بن نہیں رہی ہیں، لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے نہیں، ہاسپٹلس کے اندر بہت اچھا انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ویسا اویئرنیس نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو انڈس ہاسپٹل نے انیشیٹو لیا 2017 میں، اور ہم نے انفیکشن کنٹرول ڈپلوما پروگرام سٹارٹ کیا. تو یہ انیشلی فیس ٹو فیس تھا اور پارشلی یہ آن لائن تھا. آن لائن بھی ہمیں اس لیے سٹارٹ کرنا پڑا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو انٹرسٹڈ تھے، اس کورس میں آنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس ایسی فیسلٹی نہیں تھی کہ ان کو ہم ہاسٹل پرووائڈ کرتے. تو ہم نے اس وقت IT ٹیم کے ساتھ بات کر کے اس کو آن لائن کیا، اور بہت ہی سکسیزفلی ہمارا یہ پروگرام رن ہوا 2017 میں. اور اب تک ہم لوگ تقریباً 5th بیچ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. تو ہمارا جو پہلا بیچ تھا وہ 22 اسٹوڈنٹس کا تھا، جو کہ اب ماشاءاللہ 160 اسٹوڈنٹس کے اوپر ہمارا کرنٹ بیچ چل رہا ہے. ٹوٹل 8 ہمارے سبجیکٹس ہیں جو کہ 3 سیمسٹرز پہ ہیں، کنسسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک سیمسٹر 32 ویکس کا ہے، 16 ویکس کا ہے. اور 32 ویکس تک ہم لوگ تھیوری پڑھاتے ہیں، اور 16 ویکس یعنی جو 3rd سیمسٹر ہے وہ ہمارے کلینکل وہ ہوتے ہیں، اسسمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی ہینڈز آن ٹریننگ ہوتی ہے. ہماری ایگزام پریپریشن ہے فار 1 month کے لیے، اور ہمارے ٹوٹل جو کوالیفائڈ فیکلٹی اس میں انوالو ہے وہ 20 فیکلٹی ہے، جو کہ ہر اسپیشلٹی سے ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. موسٹلی انیشلی ہم لوگوں نے آؤٹ سورس پہ گئے، ہم نے کچھ باہر سے بھی فیکلٹی کو انوائٹ کیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انڈس ہاسپٹل اب تمام اس کورس کو پورا کیٹر کر رہا ہے. ہمارے پاس ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، ہمارے پاس ID ٹیم ہے، ہمارے پاس انوائرمنٹ سے، ایئر اور کنسٹرکشن سے ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں. بیسک ٹو ایڈوانس انفیکشن کنٹرول ہم لوگ خود پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی فیکلٹی ہے وہ الحمدللہ ود ان کیمپس ہے، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہے. جو اچیومنٹس ہے اب تک، ٹوٹل نرسز ہماری 232 پاس آؤٹ ہو چکی. رائٹ، سوری، ہم لوگ شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. یہ فیس ہمیں کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے ایشوز جو ہم آن لائن جاتے ہیں.
تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا انڈکشن کس طرح سے ہوتا ہے. ہم لوگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہمارا کرائٹیریا نرسز ڈاکٹرز اینڈ بی ڈی ایس کے لیے ہے. اور ہم لوگ جو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر موڈیول کا ہمارا اسیسمنٹ ہوتا ہے, کوئزز ہوتے ہیں, پھر فائنل ایگزامس سیمسٹر وائز, اور اس کے بعد فائنل ایگزام وائوا ہوتا ہے. اور وائوا کے لیے ہم تھرڈ پارٹی انوائٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ اس کے لیے پی کے ایل آئی کا بہت شکر گزار ہیں. کراچی سے طبع ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کام کے لیے. تو ہم لوگ باہر سے ایکسپرٹیز کو بلا کے اسٹوڈنٹس کا وائوا کراتے ہیں. ہمارا امپیکٹ کیا ہے یا ہمارا آؤٹ کم کیا ہے, ہم جو اتنے گریجویٹس نکال رہے ہیں تو وہ کس طرح سے ان کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. تو ہم نے ایک سروے کیا تھا, تقریباً 400 اسٹوڈنٹس جو ہمارے تمام 5th بیچ تک کے, ہم نے ان کو ایک کویسچنیئر بھجوایا تھا جس میں سے 200 سم تھنگ لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا. اور اب تک ٹوٹل ہمارے ہم نے ان سے معلوم کیا تھا کہ وہ کہاں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, کون سے شہر میں ہیں, کون سے ہاسپٹلس میں ہیں, اور وہ ایز اے کیا انفیکشن کنٹرول کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ چاروں پروونسز سے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, اور 52 سٹیز سے یہ لوگ ہمارے پاس ایجوکیشن لی انہوں نے, اور ہمارے پاس انٹرنیشنل 3 اسٹوڈنٹس تھے. اس کے بعد ہمارا ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس ایز انفیکشن کنٹرول پریکٹیشنر کام کر رہے ہیں وہ 47 ہیں, اور 161 ہاسپٹلس کے اندر یہ لوگ سرو کر رہے ہیں ڈفرینٹ سب. تو یہ بہت اچھی ایک ہماری کنٹریبیوشن ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ٹوٹل ہاسپٹلس کتنے ہیں, تو 2016 کا اسٹیٹسٹکس جو میرے سامنے آیا, 1200 پبلک ہاسپٹلس ہیں, 700 پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں. اس کے علاوہ بیڈ سائڈ ہاسپٹل, اسمال میڈیکل کلینکس ہیں, میٹرنٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں, یعنی ایک اچھا بڑا سیٹ اپ ہے. اور اس میں ہمارے جو رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں وہ 24,05,987 2020 کا یہ ڈیٹا ہے. ڈینٹسٹ 27,360, اور رجسٹرڈ نرسز جو ہیں وہ 1,16,659 ہیں. تو جب میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ ہم کتنے لوگوں کو اب تک پڑھا چکے ہیں یا ہم کتنا ہماری سروس کیا ہے, تو بہت ہی منیمم 0.05%, یعنی بہت اسمال اماؤنٹ میں ہم لوگوں کو ایجوکیشن دے چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک بڑا سفر ہے, اور ہمیں بہت دور تک جانا ہے, بہت محنت کرنی ہے, اور ہمیں صرف انڈس کو نہیں, باقی سارے کیمپسز, باقی سارے ہاسپٹلس کو بھی اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہوگا, تاکہ ہم پورے پاکستان میں لوگوں کو پڑھا سکیں, اور ہم سچ مچ وہ ڈریم کو ہم منزل دے سکیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ انفیکشن فری پاکستان. تو امید اب بھی باقی ہے سحر ہونے کی, ذرا حوصلہ رکھو, منزل مل ہی جائے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے, بس ہمیں اسٹرگل کرنا ہے, ہمت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, اور ایک دن ہم یہ منزل پالیں گے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ اب میں ریکویسٹ کروں گی, اب میں ایک میسج رن کرنا چاہتی ہوں خیرالنساء کا. خیرالنساء جو ایس این ای بی کی ڈپٹی ڈائریکٹر نرسنگ ہیں, انہوں نے اپنی ایک وائس میسج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Ms. Arfa, for inviting me. Due to some official meetings, I can't attend your program. First, I want to say congratulations for certificate ceremony on IPC. This is very excellent. You maintain IPC department and deliver IPC care. And we were and together as team we will fight all infection COVID-19, as I have been taking an initiative to work for infection control and prevention proactively, not only in sin prevalent
but across Pakistan, because nurses make a difference. I'm grateful to Honorable Minister Health, Madam Azra Pijo Saiba, and Secretary Health, Dr. Kazim Chatoi Sahab. They appreciate our efforts and support us at every level. I congratulate you again as our team. जिस तरह के लास्ट हमारी फर्स्ट आईपीसी ट्रेनिंग जो है वो कंट्री लेवल WHO के कोलैबोरेशन से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के कोलैबोरेशन से फर्स्ट मास्टर ट्रेनिंग हुई, देन सेकंड मास्टर ट्रेनिंग हुई जो कि 15 डेज की हमने ऑर्गेनाइज की डायरेक्टोरेट में, और आप उसमें कोर्स डायरेक्टर थी मिस आरफा, तो इंटस का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह अभी हमारी थर्ड लाइन ट्रेनिंग जो है वो गो थ्रू है, जिसमें हम डिवीजन लेवल पे जो है वो जा रहे हैं। जिस तरह कराची डिवीजन की 1 मंथ की ट्रेनिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेकंड इसी तरह हम हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना करेंगे। तो ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इफ वी वांट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो आप देखें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपकी हर नर्स जो है वो ट्रेंड होनी चाहिए। तो जिस तरह आपने आईपीसी डिपार्टमेंट मेंटेन किया है, यू हैव प्राइवेट सेटअप, बट इन पब्लिक सेक्टर जिस तरह ट्रॉमा इंस्टीट्यूट है, और आप देखें कि बेहतरीन आईपीसी मेंटेन हो रहा है, ऑल्दो कि उनके पास आईपीसी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। और जो हमें आईपीसी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स गए भी, और वहाँ पर भी वेल मैनेज्ड डिपार्टमेंट। और हम चाहते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर का हर इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर का उसी तरह मेंटेन हो। तो जब तक आप देखें कि जब आउटब्रेक हुआ लाड़काना में, तो हमने एक करिकुलम डेवलप किया था आईपीसी पे, जो कि हम समझते थे कि 1 ईयर कोर्स होना चाहिए, जो अभी भी अंडर प्रोसेस है बीएनसी की अप्रूवल के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वो कोर्स करा भी दिया, और आप लोगों के पास 1 ईयर सर्टिफिकेशन भी आज हो रही है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेट। और मैं आपको प्रोग्राम जो है वाकई मिस करूंगी, और इंडस की सर्विसेज जो है वो एक्सीलेंट है हर लिहाज से, क्योंकि जो भी पेशेंट जाता है तो यही कहता है कि फ्री सर्विस है, बेटर इन्वायरमेंट है, और आईपीसी मेंटेन हो रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेट मेरी तरफ से अगेन। आप देखें कि कोविड-19 पैंडेमिक में हमने किस तरह कोप किया। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ नर्सेस थी, हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और उनको डिप्यूट किया। उसके बाद हमने कोविड नर्सेज जो है वो हायर की और उनको डिप्यूट किया, जो कि हमारी रेंडर बेसिस अभी तक वर्क कर रही है। तो अभी 600 हमारी पास पोस्टें जो है वो भी क्रिएट हो चुकी हैं। तो डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक्सीलेंट वर्क किया है। और इन सीन जो है मैं समझती हूँ बीइंग अ फोकल पर्सन नर्सिंग सीन, क्योंकि एक्टिविटीज तो डेफिनेटली बर्डन काम का बहुत ज्यादा होता है, और जब आप पे ओवरलोड होता है, क्योंकि मैं कंट्रोलर इन नर्सिंग बोर्ड भी हूँ, एग्जामिनेशन भी है और डायरेक्टोरेट भी है, और ये कोविड इमरजेंसी भी है। तो इस इमरजेंसी में भी हमने हर चीज मेंटेन रखी है। डायरेक्टोरेट में बीएस के जो एडमिशन पेंडिंग थे 2020 से, वो 21 में अल्हम्दुलिल्लाह सेशन भी आ गया तकरीबन। पहले हमारे पास कोई 5 यूनिवर्सिटी कराती थी पब्लिक सेक्टर में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 28 इंस्टीट्यूट है जो बीएस नर्सिंग करा रहे हैं। इस तरह प्राइवेट में भी तकरीबन 52 इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जो अपग्रेड हो गए हैं और एज पर स्टैंडर्ड है। तो कोविड इमरजेंसी के साथ साथ हमें ये बात लाजमन देखनी है कि हम क्वालिफाइड और स्टैंडर्ड नर्सेज जो है वो प्रोड्यूस करें, और नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है, और स्पेशली क्वालिफाइड नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है। जिस तरह बीएस लेवल पे आपको फॉरेन कंट्रीज में भी काफी डिमांड आ रही है कोयर से, और इस पैंडेमिक में तो नर्सेज की वो जो कहते हैं ना कदर बहुत बढ़ी है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है नर्सेज का। हायर स्टडी करें, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, नर्स प्रैक्टिशनर आ जाएगी अब हमारी न्यू एक्ट के तहत। तो विश यू गुड लक ऑल नर्सेज, और इंडस इंस्टीट्यूट मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर
ظفر سے. ڈاکٹر ظفر پلیز, آپ کی اسپیچ ہے, آپ کے ویلیوبل ریمارکس کی ہمیں ضرورت ہے, پلیز. السلام علیکم ایوری بڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کی تقریب بہت ضروری ہے اور اس میں خوشی کا موقع ہے کیونکہ آج ہمارا یہ بیچ جو پاس آؤٹ ہو رہا ہے انفیکشن کنٹرول کا, دس از این ایکسلنٹ اپرچونٹی فار انڈس ہاسپٹل. It's the mission behind Indus Hospital, the people working in Indus Hospital, کہ یہ اس کو مشن کو آگے بڑھائیں کہ صرف اس ہسپتال تک ہی نہیں مگر شہر میں, اس پروونس میں اور اس ملک میں, جیسے عارفہ نے بتایا سارے اکراس all 4 provinces, even internationally بھی اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں. تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے, ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا اتنا سالڈ اور اتنا ویل آرگنائزڈ پروگرام چل رہا ہے جو ہو رہا ہے. میری گزارش ہے کہ یہ نیشنل لیول پہ ریکگنائز ہو جائے, اس کو ڈگری مل جائے, ڈپلوما اگر یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو مل جائے تو اٹ بی این ایکسلنٹ تھنگ. مگر ان کی کوششیں بہت زبردست ہیں اور عارفہ اور ان کی تمام ٹیم نے جس طرح سے کووڈ میں کام کیا اور یہی کورس کو مینٹین بھی کیا, کرتے بھی رہے, اس کو آرگنائز کرتے رہے اور چینج کرتے رہے, اور اب اللہ کا شکر ہے یہ ہم سارا کا سارا آن لائن کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سارے بڑھ گئے ہیں, تو میں وہ سارے اسٹوڈنٹس جو اس بار پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور یہ کورس کر رہے ہیں, ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. سارے ٹیچرز کو جو اس میں انوالو تھے, چاہے وہ انڈس کے ہوں یا جو ہمارے دوست جو ہماری مدد کرتے ہیں دوسرے انسٹیٹیوشن سے آن اینڈ آف چیزوں میں, لیکچرز میں, خاص طور پہ الطاف صاحب کا بڑے شکریہ کیونکہ وہ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی روح روا رہتے ہیں, بہت حد تک ان کو انسپریشن اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, تو ان کا بہت شکریہ. سو یہ ایک بڑا اچھا ایک کورس ہے جو ہو رہا ہے اور اسی طرح سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اور جگہ کریں. میری ریکویسٹ سارے آرگنائزرز سے ہوگی, اسپیشلی عارفہ آپ سے, اور آئی تھنک ڈاکٹر باری بھی دیکھ رہے ہیں اس کو, کہ کیا ہم اس کو کوشش کر کے گورنمنٹ سندھ, ایٹ لیسٹ سندھ میں گورنمنٹ لیول پہ کمپلسریلی اور جگہوں پہ کرائیں کیونکہ انفیکشن کنٹرول کی ایک میجر ضرورت ہے اور یہ بہت آرام سے گھر بیٹھ کے آن لائن یہ کورس ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہو سکتی ہیں. سو آئی تھنک ہمیں اس طرف کام کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو ڈیولپ کر لیا ہے, اب اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جائیں جہاں پر ہم اس کو کمپلسری بنوائیں یا ایٹ لیسٹ ضروری سمجھیں لوگ اس کو اور کریں. اور ہر انسٹیٹیوشن میں جیسے بھی آپ نے دکھایا کہ ایک بہت ہی کم امپیکٹ ابھی تک ہوا ہے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا میکسیمم جگہوں پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے ہو انفیکشن کنٹرول. آئی مین اٹس سیڈ کہ بڑے بڑے ہاسپٹل, ابھی نام بھی لیا تھا, اس میں انفیکشن کنٹرول کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. سو اگر لوگ ٹرینڈ ہوں گے تو ڈپارٹمنٹس بنیں گے تو پریکٹسز ہوں گی تو انفیکشن کم ہوگا, اینڈ obviously that will lead to better health. اینڈ ہمارا جو مین مقصد ہے کہ مریض ٹھیک ہو اور ڈیزیز نہ پھیلے اور پریونشن ہو, اس میں ہمیں بہت فائدہ بھی ہوگا اور بہت پروگرس بھی ہوگی. سو congratulations for all those who are passing out today. Congratulations to the teachers. Well done, excellent work. And I appreciate کہ یہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی طرح سے یہ بڑھتا جائے اور بڑھے اور پھولے اور ترقی پائے. اور the sky is the limit. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستان میں اس کو کریں. آئی تھنک ہمیں بہت ایکٹیولی اس کو انٹرنیشنلی پروگریس کر کے اور جگہ بھی لے کے جانا چاہیے اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے, جیسے جیسے جہاں کی ضرورت ہو اس کو انکارپوریٹ کرتے رہنا چاہیے. سو لیٹس ورک آن دس, تو اس کو ہم اس لیول پہ پہنچائیں کہ اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہو کہ ہمیں ابھی بھی یہی ہو گیا ہے کہ عارفہ کو جتنے اسٹوڈنٹس یہ لے سکتی ہیں اس سے زیادہ اپلیکیشنز آتی ہیں. So maybe we can run, let's see how it goes. Maybe we should try and think about running it twice a year. 2 parallel sessions شروع کریں. عارفہ تیار ہو جائیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کام اور بڑھنے والا ہے انشاءاللہ. So all the best and بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ظفر. میرا خیال ہے بڑوں کو شامل کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کام اور بڑھ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو ہمارا خواب ہے
اور ہم اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی محنت اسٹرگل کرنی جتنی ہمت ہوئی انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کریں گے. اور دعاؤں کی ضرورت ہے, دعائیں چاہیے. Now I request Dr. Altaf. Dr. Altaf آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر, ڈاکٹر الطاف پی کے ایل آئی میں وہی والا مشن سنبھالے ہوئے ہیں جو انڈس سے چھوڑ کر گئے تھے, اور وہاں پہ بھی وہی سب چیزیں جاری ہیں. اور انشاءاللہ ایز اے ٹیم پورے پاکستان میں انفیکشن کنٹرول جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے وہ ہم سب ایک ہیں اور ہم بڑھتے رہیں گے. ڈاکٹر الطاف ویلکم. الطاف آپ میوٹ ہیں. Hello. Yes. Thank you, جی آ رہی Alpha. آواز. جی Thank you very much. It's a pleasure to be here. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انڈس کو چھوڑا نہیں ہے ابھی, اور ڈاکٹر باری کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. چھوڑ نہیں سکتے ڈاکٹر باری کو. سو آئی ایم آلویز ود انڈس ہاسپٹل اور انفیکشن کنٹرول تو آلویز. سو شوڈ آئی اسٹارٹ مائی پریزنٹیشن؟ یس سر پلیز. اوکے. So, can you see my slides? Is it okay? یس فائن. Right. So, اس آیت سے شروع کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ایک زندگی بچاتے ہو تو پورے مین کائنڈ کو بچاتے ہو, تو ہم سے زیادہ انفیکشن کنٹرول کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور وہ ہمیں پہلے ہی بتائی جا چکی ہے. میں ابھی پی کے ایل آئی میں ہوں اینڈ آئی اسپینڈ 10 years I think this hospital. یہ اس زمانے کی تصویر ہے جب میں نے جوائن کی تھی. آئی نو یہ بالکل چینج ہو چکا ہے ایسے گرون اپ ماشاء اللہ. تو نارمسلی انفیکشن کنٹرول جب پاکستان میں شروع ہوا 1991-92 میں, اور ڈالر کا ریٹ 20 روپے تھا اس وقت. سو بٹ اینی وے اٹس گروئنگ. It's not growing like the rate of dollars, but yes, it is increasing day by day. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں سے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے کوئی بھی جگہ ہو, سندھ ہو, بلوچستان, ہر جگہ آپ کے اسٹوڈنٹ پھیلے ہوئے اور کچھ نہ کچھ چیزیں شروع ہو رہی. تو ابھی مایوس نہیں ہونا ہے اور اس کو لے کے ہم نے لانگ وے ٹو گو. اس کی نیڈ کیا ہے؟ بہت ساری نیڈ ہے کیونکہ اسینشیل ریکوائرمنٹ فار امپلیمنٹنگ آئی پی سی پروگرام امپلیمنٹیشن کا مقصد ہے. اگر لوگ سیکھ بھی رہے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کا فیڈ بیک آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے ضرور لیجیے گا ایک سروے کے ذریعے کہ کس نے کیا امپلیمنٹ کیا اس کو پاس کرنے کے بعد. فارمل ٹریننگ ہے نہیں, لیک ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ اور آئی پی سی کی انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں. انفیکشس ڈیزیز برڈن بہت بڑھتا ہی جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے لاڑکانہ کا HIV آؤٹ بریک دنیا کا واحد آؤٹ بریک تھا. HIV کو کبھی بھی اینڈیمک کہتے ہیں, آؤٹ بریک کبھی نہیں کسی نے کیا, لیکن پاکستان میں ہوا. کووڈ پینڈیمک ہے, سب کو پتہ ہے, بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے کووڈ, بٹ اسٹل لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کووڈ جائے اور ہم اپنے نارمل روٹین پہ واپس آ جائیں وداؤٹ انفیکشن کنٹرول پرابلم. جو ڈیٹا ہے یہ پاکستان کا صرف میں نے ایک اسٹڈی دی ہے آپ کو, اور ٹھیک ہے ڈیٹا ہوتا نہیں ہے اتنا اچھا, بٹ دس از ویری ویری الارمنگ ڈیٹا. مطلب سرجیکل سائٹ انفیکشن 40%, بلڈ اسٹریم انفیکشن, لوور ریسپیریٹری ٹریک, اور یہ سب پریونٹیبل ہے. نیو نیٹل, اور پھر آپ اسپیشلائزڈ یونٹ میں چلے جائیں, it's really very 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 disturbing. So ایک بہت بڑا کام ہے کہ سرویلنس ڈیٹا ہمارے پاس FAIs کا پاکستان میں ایون لارجر سٹیز لارجر ہاسپٹلس کے نہیں آ رہے. تو جو ڈیورنگ جو کورس ہے آپ پڑھاتے ہو سرویلنس, اس کو ظاہر تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جب لوگ اپنی فیسلٹیز میں واپس جاتے ہیں. سو وہ سرویلنس کا وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے جیسے ان کو کرنا چاہیے. تو ایک آن گوئنگ فیڈ بیک اور آن گوئنگ ٹریننگ سلسلہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ کورس پاس کر لیا.
evolving resistance, Pakistan, India in red, NDM1 producer, carbapenem resistance. आप पूरी दुनिया में देख लो, फोकस कहाँ पे, और इसको हम कैसे, इसके होते हुए हमने खुद पैदा किया इसको, और इसको हम संभाल नहीं पा रहे, और हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया। ऐसे में आईपीसी स्टैंड आउट के आईपीसी हमें बचा सकता है। अगेन कार्बापेनम रेजिस्टेंस जो हमारे पास तकरीबन लास्ट रिजॉर्ट बन गई है, चाहे वो क्लेब्सियला नमूनी हो, ई कोलाई हो, एसिनेटोबैक्टर तो नाम ही मत लें। The data is so disturbing, or we are losing this wonderful antibiotic. तो आप क्या करोगे? एंटीबायोटिक का तो नहीं आ रहा आपके पास इस तरह। All these activities हम करना चाहते हैं, और ये चीजें कैसे करें विदाउट प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी, या इतना रेजिस्टेंस होगा तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। आप कर तो लोगे, लेकिन इसका आउटकम नहीं मिलेगा पेशेंट को जो उसको मिलना चाहिए। And only IPC can help, not antibiotics. ये एंटीबायोटिक्स कुछ आ रही हैं, इसमें से पहली वाली सेफ्टाजिडिन मेविबैक्टम probably जनवरी में आ रही पाकिस्तान में, is going to help, but it's not effective against NDM1. दूसरी मॉलिक्यूल ऑक्सा 48 और TEM1 उस पे तो काम करता है, but it is not for everything. और बाकी एंटीबायोटिक तो अभी आई भी नहीं है पाकिस्तान में। So again IPC चाहिए हमें, और एंटीबायोटिक नहीं। हेल्थ केयर कॉस्ट और रिसोर्सेज हम इस तरह ज़ाया करते हैं, मुझे अफसोस होता है। और एटलीस्ट एक डोनर बेस्ड हॉस्पिटल में IPC को उस लेवल पे होना चाहिए कि रिसोर्सेज ज़ाया ना हो। इतनी मुश्किल से फंड जमा होते हैं, और डॉक्टर बारी, डॉक्टर जैदी को पता है। अनसेफ प्रैक्टिसेस, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस के आई नो इंडस नेटवर्क में इसकी इजाज़त नहीं है। But other than Indus, other than PKLI, few hospitals, ज़्यादातर लोग unnecessary चीजें करते हैं, अपने resources ज़ाया करते हैं। तो एक guidelines, do's and don'ts की होनी चाहिए, publication और whatever, लोगों को इसकी जरूरत है। लोग अभी तक फिनाइल से पोछा लगा रहे हैं। We have a lot of things to do, जिनके पास knowledge है वो share करें। लोग कहते हैं, WHO कहता है कि IPC measures starts with administrative control. You are lucky कि इंडस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आती है खास तौर पे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में। एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल, इसकी तो पाकिस्तान में शदीद कमी है। एंड एवरीबॉडी नोज के हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग का सिस्टम कितना पुअर है, जबकि इसका मेजर रोल है आउटब्रेक्स में और स्प्रेड ऑफ PPE. You can look at PPE, बिल्कुल बॉटम डाउन पे ये इन्वर्टेड पिरामिड में है। PPE will save you, but environmental and engineering control is so much needed, और वो totally neglected है। हमने इस पे कभी कोई कोर्स नहीं किया, हमने कभी इस पे कोई मैनुअल नहीं बताया कि how a hospital should be built. So healthcare environment की least priority है। It's all about priority, and WHO clearly mentions कि कौन से risk factors हैं, उसमें inadequate environmental hygienic condition and waste disposal, poor infrastructure वगैरह वगैरह सब शामिल है। So all we know, और एक कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल सेटिंग जब थी इंग्लैंड में, जब हॉस्पिटल बनने शुरू हुए, उन्होंने बड़े बड़े बैरक्स को बिस्तर लगा दिए। पेशेंट आर नॉट प्रोडक्ट्स। Things should change, environment of hospital should change, designing of hospital should change. ये मॉडल अब नहीं काम करता इस तरह से। How can you do infection control in such hospitals? So in environmental engineering control hospital के लिए बहुत जरूरी है, और इस पे नजर रहनी चाहिए। Hygiene, हम अब तक sweeper, janitorial staff, unpaid, less educated, less privileged. Even मैंने कई जगह इंटरव्यू किया है, they got only one uniform per week. एक बंदा जो स्वेट में अपना काम कर रहा है। You remember जब हमारे पास आए थे लोग, जब मैं इंडस में था, तो जर्मनी से कुछ लोग आए थे, and they were asking about cleanliness and hygiene. कहते हैं आपके पास हाइजीनिस्ट कितने हैं? मैं कहा we don't have hygienists. What do you mean by hygienist? We have housekeeping staff. No. They will give you a clean hospital, so 50% of infection control is done.
सो जब तक आप इनको अपग्रेड नहीं करोगे ये आपका हॉस्पिटल जो है वो इन्फेक्शन फ्री नहीं होगा. सो वी नीड हाइजीनिस्ट. और आपको पता है हम मैकडोनल्ड KFC जाते हैं किसी बड़ी जगह पे जाते हैं, द मेन थिंग विच अट्रैक्ट्स इज क्लीननेस एंड रियली दे नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. इसलिए मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत जरूरी है. ऑल दीज हैज टू बी क्लियर, ऑल द हाई टच सर्फेसेस. और इसका इम्पैक्ट है, मैंने देखा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट आता है आउटकम ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट में. हर चीज हमने देनी है इनको, इस पे हमने इन्वेस्ट करना है ज्यादा से ज्यादा. एंड दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज इन्वेस्टमेंट. अगर किसी जगह की हाउसकीपिंग अपग्रेड हो जाती है तो मेक इट अ टारगेट एंड अपग्रेड योर हाउसकीपिंग, और आप देखना इन्फेक्शन किस तरह नीचे जाए. सो इट हैज टू बी डन. जितने भी हाई टच सर्फेसेस हैं उनको कैसे साफ करना है, क्या करना है, उनको मॉनिटरिंग कैसे करनी है. जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम उसको मॉनिटर नहीं करते. दैट इज आवर वीकनेसेस. आवर मींस एवरीवन्स वीकनेसेस. हम एक चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको मॉनिटर नहीं करते. ठीक है, वी डोंट हैव गुड ये बड़े बड़े एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, लेकिन हमारे पास छोटी छोटी चीजें तो हैं. हम ये ग्लोजम यूज करते हैं, इनविजिबल मार्कर से अप्लाई करते हैं और फिर यूवी लाइट से देख लेते हैं कि साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ. Because naked eye से you cannot detect microbes. So these are थोड़ा बहुत खर्चा 15-20 हजार का, but it goes a long way. So ये हमें चाहिए, हमें इस तरह के हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं चाहिए. And this is from Karachi, from Bahawalpur, from Lahore. ये चीजें हमें बिल्कुल हमारी एफर्ट्स को, रिमेम्बर आप IPC सिर्फ करते रहोगे और सपोर्ट सिस्टम आपका इस तरह का नहीं होगा, then you won't get the better outcome. आप इसी IPC सर्विसेज के साथ इन चीजों को लेके चल सकते हो, इनको इज्जत दे सकते हो, इनको प्लॉट कर सकते हो. सो इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आजकल काफी ज्यादा. हॉस्पिटल डिजाइन जाहिर है इसमें IPC देर में आता है, बाद में आता है. दैट इज द मिस्टेक. बाद में आप कहोगे यहाँ पे सिंक लगा दो, ये नाली तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि यार ये नहीं हो सकता. सो फॉर्चुनेटली जस्ट PKI में सिंगल रूम है, वार्ड नहीं है कोई भी, सिंगल रूम ICUs हैं और इस तरह से उनकी देखभाल होती है. सर इट्स बेटर, इसीलिए शायद यहाँ पे इन्फेक्शन रेट काफी कम. कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए. मैं कहता हूँ कि मैंने पंजाब के मिनिस्टर को बोला कि आपका 30% कॉस्ट कम हो जाएगा. थिंक अबाउट 30% पंजाब का हेल्थ केयर कॉस्ट कितना होगा. एंटीबायोटिक्स पे कितना हो रहा है, बेड पे, लेबोरेटरी, अदर सिस्टम. पीपल हैव प्रूवन दिस कि ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉस्ट कितना है. लुक एट दिस चार्ट एंड करेक्ट स्टडी कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में कितने डॉलर लग रहे हैं और उसके साथ जिस पे नहीं है उस पे कितने लग रहे हैं. तो दिस हमंग कॉस्ट, और ये कॉस्ट अंदर ही अंदर बंदे को रिसोर्सेस को पी रहा होता है और इसकी कॉस्ट हम नहीं निकालते हैं और शायद नहीं निकाल पाते हैं. बट आई थिंक यू शुड वर्क ऑन इट. मैंने सुना है कि कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं. सो गॉट टू टेल दी एडमिन के देखो मैंने इतने हजार, इतने लाख डॉलर बचा लिए, आई नीड फ्यू मोर स्टाफ, हैव टू अपग्रेड. तो साइंटिफिकली चलो तो एडमिन को भी मजा आता है इन चीजों में कि साइंटिफिकली प्रूवन. वी हैव टू डू दिस. इन्फेक्शन कंट्रोल सिर्फ इन साइलो मतलब अकेले नहीं करने का काम है. इसके साथ आपको एंटीबायोटिक स्टोरशिप और डायग्नोस्टिक स्टोरशिप चाहिए. से फॉर एग्जांपल C. diff की आउटब्रेक हुई है, C. diff आपको डायग्नोस नहीं हो रही आपकी लैब में, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे. हमारे से इसी तरह है, रैपिड डायग्नोसिस नहीं हो रही तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद पता चल रहा है, वगैरह वगैरह. सो टुगेदर मेक्स अ डिफरेंस. जब अभी मेरे इस्लामाबाद में काफी मेरी बहस हुई तो जनरल आर्मी इकराम ने अपनी नेशनल गाइडलाइन में खुद लिखा हुआ है. मैंने कहा आपने खुद लिखा हुआ है कि देयर इज नो फॉर्मल IPC ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करते इन चीजों को. फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान से बहस हुई. मैंने कहा आपका आर्टिकल छपा हुआ है जर्नल ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन में और आप कहते हो कि नेशनल डेटाबेस नहीं है, there is urgency to train professionals in IPC. So why don't you support program at PKLI, at Indus Hospital, at Shafat Khanam, at Khan, जो भी लोग काम कर रहे हैं
उनको आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? So again, the result of this study highlights the challenges faced by physician leading infection prevention control programs. So they were काफी मुतासिर हो गए. फिर मिनिस्ट्री ने फर्स्ट नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग बुलाई 15 अक्टूबर को, और उसमें NIH और WHO से लेके सारे लोग शामिल थे to think about IPC implementation. इसमें ये सारे लोग थे, और वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, CDC, MMI, DSP सब कुछ थे, और बहुत अच्छी, और हेल्थ केयर कमीशन सिंध का, पंजाब का, DG हेल्थ, एवरीवन वाज देयर एंड दे वर टॉकिंग अबाउट. और इंडस हॉस्पिटल से आप आई थी, डॉक्टर आयशा थी MIKD से, और डॉक्टर फहीम आ नहीं सके थे, ही वाज इनवाइटेड. सो इंडस ने और PK लाइन ने, हमने मिल के ये काम करना है, और इन लोगों को हैमरिंग करनी है, ताकि अब ये जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बरादरी के लोग हैं, इन्फेक्शन की बात करते हैं. सो ये ट्रेनिंग कोर्स हुआ जिसमें आप शामिल थी, और उसमें हमने ये सारी चीजें की है. वन थिंग वाज रिकॉग्निशन एंड लिंकिंग IPC एंड AMR स्टूवर्डशिप. सो आपने इसका हॉराइजन इसको बड़ा करना है, और इसको AMR के साथ लेके चलना है इसको. एंड समहाउ आई थिंक मल्टी मॉडल स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना है. तो आपके कोर्स में AMR का जो विंग है, जो वो उसको काफी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. नेशनल गाइडलाइंस को बेस करेंगे तो कोई आप पे कुछ नहीं कहेगा कि जी नहीं, ये पाकिस्तान की पहली गाइडलाइंस है, जो नेक्स्ट ईयर इसको हम रिव्यू करेंगे. और इसके टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में बहुत सारे लोग शामिल हैं, इंडस से भी हैं. और ये मॉड्यूल डॉक्टर के लिए बनाया गया था कि 1 वीक का, और ये इसमें लेक्चर्स और सारी चीजें शामिल हैं WHO कि हर डॉक्टर को ये करना पड़ेगा. नर्सिंग का 4 वीक्स का कोर्स है, वो आपको पता है, और ये ऑलरेडी पंजाब में शुरू हो चुका है, एड्रोनाबाद सिंध. और हाउस कीपिंग स्टाफ का भी कोर्स है. ये गाइडलाइन सारी बन चुकी है, नोटबुक्स सब कुछ बन चुका है, पैकेज उर्दू में, इंग्लिश में, ये सारी कुछ एक्टिविटी हो गई है. तो कुछ ना कुछ समझ आ रही है ऊपर के लेवल में लोगों को कि यस, इसके बगैर नहीं चला जा सकता, और इसको लेके हमने चलना है. रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब ने जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके करिकुलम में इन्फेक्शन कंट्रोल के 24-25 आवर्स डाल दिए हैं. तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को MBBS लेवल पे इन्फेक्शन कंट्रोल का भी कोर्स करेंगे, और इसका एग्जाम भी होगा. सो ये एक बड़ी सक्सेस थी, गुड न्यूज़ है कि वो इस लेवल पे सीख जाएंगे, तो बाद में उनको सीखने में आसानी होगी. अभी तो उन बेचारों ने, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था MBBS चीजें. सो नो IPC, नो AMR कंट्रोल से दुनिया, ये बज़वर्ड है आजकल, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको अपने मॉड्यूल में किस तरह करना चाहिए. दुनिया की बेशुमार स्टडीज हैं कि मल्टी मॉडल इंटरवेंशन स्टडीज ही काम आती हैं. ये सारी मल्टी मॉडल एक्टिविटीज हैं. इसमें फॉर कैथेटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, इसमें आप यू कैन गो ऑन ऐड मोर थिंग्स इन इट. स्टडीज क्लियरली बताती हैं, जो लोग नहीं मानते उनको क्लियरली बताते हैं कि बेसलाइन में क्या था और इंटरवेंशन के बाद क्या था. दीज आर लार्ज स्टडीज. पीटर प्रोवेनोस्ट वाज इन्वॉल्व्ड इन इंडस हॉस्पिटल मेरे जमाने में, एंड वी हैड डायरेक्ट लेक्चर्स फ्रॉम US बाय प्रोवेनो. सो ये चीजें हम कर रहे हैं, और इसके साथ इंटरनेशनली आपने चलना है, और ये स्टडी बतानी है कि बेसलाइन में ये था और इंटरवेंशन. दैट्स हाउ पीपल आर गोइंग टू बिलीव इट. अदरवाइज हम सिर्फ ये चीजें नहीं बताएंगे तो लोगों की एक्सेप्टेंस रेट कम होती है. AKU की स्टडी है नियोनेटल यूनिट में, और उनको भी आप देख सकते हो कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बाद कितना बड़ा फर्क पड़ता है. सो वी नीड सच स्टडीज, और ये स्टडीज करना बहुत जरूरी है. एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, 200 रीनल ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं, और हमारा इन्फेक्शन रेट 1.1% है, वो भी सुपरफिशियल वूंड, और सेफाजोलिन पे हम फारिग कर देते हैं 3 दिन में. सो ये मैं एनवायरनमेंट और उसकी क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, मल्टी मॉडल अप्रोच की. सो अचीविंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज सो सिंपल. आपने वो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन को करेक्टली अप्लाई करना है, एंड दैट्स इट. और सब एक दूसरे को देखते रहें, सब एक दूसरे को हेल्प करें. दिस इज द वे टू इम्प्लीमेंट थिंग्स. और ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क फॉर पाकिस्तान, और
मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि क्रिएट करना चाहिए. So thank you very much, Arfa. I hope that I finished on time, or anything if you want any question. Thank you and congratulations for having a successful diploma course in this hospital. Anytime we are with you to enhance the capacity of learning students throughout Pakistan. हमें कुछ और सोचना चाहिए. आप 100-150 या 100 लोगों का चला के, जैसे डॉक्टर जफर ने मेंशन किया, we need to work more. और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाए, एनीथिंग आई कैन डू, और इसको हमें तेजी से इसको लेके चलना है. और इसमें और चीज़ें आई विश कि डॉक्टर बारी और डॉक्टर जफर सेंटर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल बनाए इंडस हॉस्पिटल में, उसका स्कोप बढ़ाएं और उसके स्कोप के साथ काम करें. पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अल्ताफ. आपकी तो बात सुन के हम हमेशा ही, आप मेरी इंस्पिरेशन है और हम हमेशा ही इससे इंस्पिरेशन लेते हैं. और अब तक जो कुछ किया डेफिनेटली, अब रशीदा मुझसे पूछ रही हैं कि डॉक्टर अल्ताफ की स्पेशलिटी, तो मैंने कहा कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लेकिन बाबा इन्फेक्शन कंट्रोल है इन पाकिस्तान. तो उस वक्त स्टार्ट किया जब शायद नाम भी कोई नहीं जानता था इन्फेक्शन कंट्रोल का. तो और मैंने पहला सेशन आपकी कहने पे किया था हैंड हाइजीन पे, और मुझे पता नहीं था कि हैंड हाइजीन होता क्या है, और मैं लेक्चर दे रही थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे नहीं पता इन्फेक्शन हैंड हाइजीन क्या होता है, क्योंकि आज भी हम हैंड हाइजीन पे लेक्चर ले रहे होते हैं. थैंक यू वेरी मच. और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई आज डॉक्टर बारी को देख के. डॉक्टर बारी, दुनिया शायद अब इंडस हॉस्पिटल और डॉक्टर बारी को अलग नहीं करती है. एक दुआएं हैं दिल से निकलती हैं, और उन चेहरों के इत्मीनान है जब वो यहाँ एक लंबे अरसे के लिए भी इलाज करते हैं, तो उनके चेहरे पे वो इत्मीनान है कि यहाँ 1 रुपया नहीं देना है. तो अल्लाह ताला इस एफर्ट्स को, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें डाल रहे हैं. अल्लाह कामयाब करे और कबूल फरमाए. डॉक्टर बारी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कुछ कहिए इस मौके पे. सर आवाज आप अनम्यूट हो जाएं सर. अब आपने मुझे भी नहीं सुन दिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम. बहुत बहुत मुबारकबाद पहले पासिंग आउट जो बैच है उसके लिए, और आप लोगों को भी मुबारकबाद, टीम अल्फा और आपकी टीम को. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अल्ताफ को, जिनको आपने बाबा बना दिया. अभी देखें वो तो नौजवान है बिल्कुल. अब से जैसे गए थे वैसे उससे कुछ और कम नौजवान हो गए. तो ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल के बाबा है, लेकिन खुद बाबा नहीं. चले, तो बहुत खुशी हुई. और वे सारे इंडस जो आज यहाँ पर है, उनमें हम सब एक टीम एफर्ट था जिसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है. और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक खुशकिस्मत हूँ एज अ CEO कि ऐसी बेहतरीन टीम, ऐसे अच्छे लोग जिन्होंने इसको यहाँ पहुँचाया. एक बात जो जफर ने कहा था कि इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, और अल्ताफ ने भी कहा कि ये पहले 20 और फिर उसके बाद दहाइयाँ और फिर सैकड़ों में आया है. इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो है ना, एक जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है वैसे इसको इरप्ट होना चाहिए. पहली मेरी एक गुजारिश आपसे होगी कि कुछ कोशिश करके इसको आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में इसको एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी है, डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी है, डिप्लोमा इन इन्फेक्शन कंट्रोल, वहाँ अगर हो जाए तो इसकी एक लोगों को उसकी एक हैसियत बेहतर हो जाएगी और लोग उसको उस तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाए. और आपको देख के दूसरे सेंटर्स भी करेंगे इंशाल्लाह. तो और जहाँ सेंटर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल हम तो
हम तो आइडियाज़ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जफ़र भी इसको सेकंड करेंगे कि जी जो इसके लिए क्या करना है, और जफ़र मौजूद हैं तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा है कि हम दोनों एक पेज पे हो जाए, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, क्या ज़रूरियात हैं, वो हमें बताएं इंशाल्लाह। हम लोग तो आपको पता है कि नए आइडियाज़ के लिए हम लोगों को जो लोग यही कहते हैं कि मतलब इनको बढ़ने का बहुत शौक है, हर चीज़ करने का शौक है, तो इंशाल्लाह वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा और अल्ताफ इंशाल्लाह, और आपकी सपोर्ट पहले भी रही है और आइंदा भी रहेगी। जैसे आपने कहा आप इंडस से गए नहीं हैं, आप वाकई नहीं गए हैं, और हम भी आपको जाने नहीं देंगे, फिक्र न करें, और इंशाल्लाह ये लेके आगे चलते रहेंगे। और बाकी मेरी दुआ है कि ये और ये फैले, और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ फिर भी हम सब, क्योंकि हम सब का मिशन यही है कि हम एक खुशहाल और सेहतमंद पाकिस्तान दें, और हर एक अपना अपना हिस्सा डालेगा तो ये होगा। एक कोई इंडस अकेला नहीं कर सकता, कोई जब तक सब मिल के नहीं करेंगे, और सेहतमंद पाकिस्तान होने के लिए, लेकिन एटलीस्ट जब अल्लाह के पास जाएंगे तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकेंगे कि हमने अपना हिस्सा डाला। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया आप लोगों की मेहनत का। अल्लाह ताला ही इसका अजर दे सकता है, और वही देगा, और यकीनन दुनिया में भी दे देता है। अल्लाह में कर्ज नहीं रखता, इंसान वो कर्ज नहीं रखता, यही रीपे कर देता है। वहाँ की तो डेफिनेटली दर्जात बुलंद करेगा, हमको जन्नत में ले जाएगा सबको, लेकिन यहाँ पर भी आपको जन्नत, दुनिया को भी जन्नत बना देता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम जाते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ऑनलाइन ने बहुत सारी चीज़ें जहां आसान की हैं, आसानियां दे दी हैं, खर्चे बचा दिए हैं, और कोविड ने जो बहुत सारी मुसीबतें दी तो उसमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो गई कि हम दुनिया के साथ एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो अब हमारी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एक पीपीटी मैंने तैयार की है, हम उसको 1 बाय 1 सबके साथ इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। वो लोग वर्चुअली हमारे साथ हैं, और मेरी लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग सब अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिएगा, तो हम लोग तस्वीर लेंगे ताकि वो हमारी एक मेमोरी बन सके। काफी है। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के हवाले से हमारे एक्चुअली ये हमारा 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, और अभी इस साल हमने इसको थोड़ा अपग्रेड किया है, इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमा में इसको कन्वर्ट किया है। तो हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमने कुछ उनके लिए क्राइटेरिया सेट किया था कि वो लोग वो असाइनमेंट अचीव कर लें तो वो लोग भी डिप्लोमा ले सकते हैं। आवर्स को हमने, क्रेडिट आवर्स को हमने उसे कंपनसेट किया। तो हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं अपने सर्टिफिकेट से डिप्लोमा की तरफ, और 93 स्टूडेंट्स वो हैं जो बैच 4 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो हम जल्दी जल्दी उन लोगों के नाम कॉल करते हैं, और आप लोग अपने अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट्स तो आप अपने डिप्लोमा के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, मिस आमना इनशाद, मिस आमना खान,
Miss Amna Tabassum, Mr. Anil Gumano, Miss Anila Ambar, Miss Anika Faryad, Miss Anam Razak Hussain, Mr. Akil Javed, Miss Aksa Meraj, Miss Aisha Sadiqa Zafar, Miss Aisha Rashid, Miss Arusa Jannat Ali, Mr. Azizur Rahman, Miss Bushra Tasleem, Mr. Dalip Kumar, Mr. Eid Mohammed, Miss Farhat Parvez Bhatti, Mr. Iqbal Wali, Miss Kiran Rabani, Mr. Mehboob Ali, Miss Maruf Tariq, Mr. Mangan Das, Miss Razia Sultana, Miss Sabah Silas, Miss Natasha Faiz, Miss Saima Hussain, Miss Saima Tayyab, Miss Saira Iram, Mr. Shujat Ali, Miss Saima Latif, Mr. Sajid Hussain, Mr. Tasawwur Abbas, Miss Shabnam Nayab, Mr. Zishan Ahmed, Miss Aisha Kanwal, Mr. Zubair, Mr. Abdul Wahid, Mr. Amjad Hussain, Miss Amna Akhtar, Miss Abira Javed Bhatt, Miss Seema Muhammad Ali, Mr. Azhar Suhail Masih, Mr. Bilawal Siddiq, Mr. Asif Raza, Mr. Fakhar Zaman, Miss Dilnasheen Safdar, Miss Farhana Fareed, Mr. Harisul Rahman, Miss Maria Sharif, Miss Sadaf Amrat, Miss Safina Alladita, Miss Sabah Rashid, Miss Arfin Rafael, Miss Anmol Alisha, Miss Aisha Siddiqa Ashik, Mr. Asif Waqas Asi, Mr. Azhar Hussain, Miss Kiran Pulze, Mr. Shehbaz Ahmad Khan, Miss Fahima Alia, Mr. Akib Dil Awez, Miss Farah Simak, Miss Anam Rayaz, Mr. Hashim Hatim Gil, Miss Samina Shah, Mr. Faryad, Miss Samina Alia, Miss Sana Aziz, Miss Saira Rahmat, Miss Saira Aslam, Miss Sehrish Batul, Mr. Shahid Nawaz, Mr. Shah Fahad, Miss Shamim Bibi, Miss Shakila Ramzan, Miss Harmain Sehar, Mr. Shiraz Ahmed, Miss Suzana, Miss Suraya Aziz, Miss Sophia Kamal, Mr. Flip Zafar, Miss Sandrella Daniel, Miss Rahat Batul, Miss Rahat Kamal, Miss Farzana Kausar, Mr. Abdul Mannan, Hafiz Abdul Mannan, Mr. Hasib Ahmed, Miss Hira Firoz Shamsi, Miss Imrana Salim, Mr. Irfan Muhammad Iqbal, Miss Iram Qureshi, Mr. Kamil Shah, Miss Kaniz Amna, Miss Kashmala Khan, Miss Kainat Kali, Mr. Mudassir Mustafa, Mr. Muhammad Ahmad Ali, Mr. Muhammad Ali Canaserio, Mr. Muhammad Atif Rashid, Mr. Muhammad Noman, Mr. Muhammad Qasim Razak, Miss Nomi Bhuta, Miss Kashif Kali, Miss Kashif Kali, Miss Ikra Rafiq, Mr. Hafiz Abdul Manan, Miss Neelam Zaid Tanoli, Mr. Munawwar Jahan, Miss Farzana Arif, Miss Nayyar Sultana, Miss Sadia Ishfaq, Mr. Pardeep Kumar, Miss Saima Noreen, Miss Sadia Firdaus, Miss Saima Aslam, Miss Samreen Zulfikar, Miss Sana Umair, Mr. Syed Umair Farooq, Mr. Samsoon Mukhtar, Miss Abda Yusuf, Miss Tahmina Ruby, Dr. Adil bin Irfan, Mr. Amjad Ali, Mr. Altaf Hussain, Mr. Suleiman Silas, Miss Anam Jahangir,
Miss Anam Fayaz, Mr. Tahir Kamal, Mr. Tayyab Ali, Miss Farzana Begum, Miss Naila Begum, Miss Karima Kadir, Mr. Rao Muhammad Ramzan, Miss Rehana Parveen, Miss Razia Parveen, Miss Bushra Kamal, Mr. Abdul Muqeet, Miss Sadia Naz, Mr. Usman Ghani, Mr. Zara Batul, Mr. Wahid Ali, Miss Zahra Batul, and that's it. और congratulations सबको, और आप लोगों का डिप्लोमास इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे, आपको पोस्ट मिल जाएगी हार्ड कॉपी, और हमारा ऑलमोस्ट प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब रिक्वेस्ट करूंगी हम लोग चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, और क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर समरीन सरफराज देंगी। आमतौर पे ये कहा जाता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया तब चाय पानी का इंतजाम, तो मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ, आप अपनी अपनी टेबल पे अपना अपना चाय का कप लेके चाय पीजिएगा उसके बाद। और अब हमारे पास आ गई हैं डॉक्टर समरीन सरफराज, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर समरीन के हवाले करती हूँ स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम सारे लोग जितने भी शुरका हैं इस पे, और आज की सेरेमनी का पार्ट बन के मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है जो कि इंडस हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया 2017 में, और इतना कॉम्प्रहेंसिव इन्फेक्शन कंट्रोल कोर्स, और उसके ऊपर 394 ग्रेजुएट्स हो जाना इतने छोटे से टाइम स्पैन में, और 161 हॉस्पिटल्स में ये कैंडिडेट्स स्प्रेड आउट हैं, ये इम्पैक्ट को बजाते खुद शो कर रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बारी, डॉक्टर जफर, डॉक्टर अल्ताफ अहमद, आप लोग के तीन जो कि इस इवेंट को बहुत और मीनिंगफुल बनाते हैं। और इससे जो बातें मैंने लर्न की हैं वो एक तो ये कि ड्रीम करते रहना चाहिए, जो आरफा की टॉक का पैगाम है कि अगर इंसान ड्रीम करता है और उसके ऊपर वर्क करता है तो फिर वो चीज़ें अचीव कर सकता है और हमारे कंट्री में इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इट्स नॉट सिचुएशन के एक बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल होपलेस है, बल्कि एक तो उम्मीद हमेशा होनी चाहिए और आगे प्रोग्रेस करते रहना चाहिए चाहे जैसे भी हालात हो। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर अल्ताफ ने जो दिखाया कि 1990s में स्टार्ट हुआ था और आरफा वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स who started infection control, who learned infection control and took it forward. And Dr. Altaf has always been my mentor, my teacher, और अभी भी he environmental cleaning, ये वो चीजें हैं जिस पे हमें बहुत स्ट्रेस देना है, और इसके ऊपर जितना कहा जाए वो कम है। जितनी हमें क्लीनिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है और हाइजीन और हाउसकीपिंग की अपलिफ्टिंग में करनी है, वो एक बहुत अहम कॉर्नर स्टोन है कंट्रोल एजुकेशन के साथ इवन नेशनल लेवल पे और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और इंटरनेशनली भी आगे बढ़ना चाहिए। 2 बैचेस में और में तकसीम होना चाहिए। ऑब्वियसली उसके लिए हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है और नज़र आ रहा है कि वक्त के साथ साथ इसके अंदर तादाद में, लोगों की तादाद में और लोगों की शिरकत में इजाफा होता जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी अचीवेबल है और टुगेदर वी विल वर्क एंड अचीव दिस टास्क इंशाल्लाह।
So with this, I thank all the participants कि आप लोगों की शिरकत से ये course successful हुआ. Good luck to you in your future. और कोशिश करें कि जहाँ जहाँ भी आप लोग practice कर रहे हैं वहाँ infection control में change लाने की कोशिश करें. वहाँ अगर program नहीं है प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें. अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की कोशिश करें, बिकॉज टुगेदर वी कैन क्रिएट एन इन्फेक्शन फ्री पाकिस्तान. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू डॉक्टर समरीन. अब मेरे ख्याल हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. सब लोग एक तस्वीर आ जाए. फरहान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको मैनेज कर लें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सबका. बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया. हमारी ये तकरीब खत्म होती है. आप लोग सब चाय पीजिए, बिस्किट लीजिए और जो अवेलेबल रिफ्रेशमेंट है वो लीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.